today. क्योंकि उसने एक दिन नियुक्त किया है और वो आज का दिन है. प्रभु, Lord, कब होगा मेरे साथ? when will I receive it? आज. Today. आज. Amen. आपको रिसीव करना है. You have to receive. ये कहानी एक दृष्टांत की तरह है. This story is like, क्योंकि आप जानते हैं यीशु ने उसको चंगा नहीं किया. it's a parable because Jesus did not heal यीशु को her. तो पता भी नहीं था किसने छुआ. Jesus did not even know who touched him. ये कहानी हमारे लिए एक शिक्षा है. This is a teaching for us. यीशु ने उसको चंगा नहीं किया. Jesus didn't उसने heal अपनी her. चंगाई को खींच लिया. She pulled her healing for herself. उसने अपनी चंगाई को विश्वास से ले लिया. By faith she drew her healing. उसने कहा आज जब मैं उसके वस्त्र के छोर को छूऊंगी तो चंगी हो जाऊंगी. She said, today when I will touch the hem of his garment, I will be healed. मुझे नहीं पता आपके शरीर में क्या बीमारी है. I don't know what sickness you have in your body. मुझे नहीं पता डॉक्टर्स ने क्या बोला है. I don't know what the doctors have मगर told फर्क you. नहीं पड़ता. But it doesn't matter. कोई भी लाइलाज बीमारी नहीं है जो यीशु मसीह चंगा नहीं कर सकता. There is no incurable sickness which Jesus cannot बोलो, heal. आज जब मैं उसको विश्वास से छूऊंगा, आज जब मैं उसको विश्वास से छूऊंगी, मैं आज अपनी चंगाई ग्रहण करके जा. Say, today when I will touch him by faith, I'm going to receive my healing. I'm going back healed from this place. इस्तेमाल करना है अपने अधिकार को आज. You have to use your. तब तक उस स्त्री के पास भी वो प्रिविलेज नहीं था जो आज आपके और मेरे पास है. Even that woman did not have the privilege that you and I उसके have पास today. अधिकार नहीं था. She did not have authority. हमारे पास अधिकार. We have authority. आप आज कैंसर से बोलोगे. You will speak to the cancer. आप आज उस ट्यूमर से बोलोगे. You will speak to that आप tumor. आज उस लाइलाज बीमारी से बोलोगे. You will speak to that incurable disease today. ये आपका दिन है. This is your day. मैं आपको बता रहा हूँ अब जब हम प्रार्थना करने जा रहे I हैं, am telling you when we are going to pray today. परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर उतरने वाली The है. power of God will come down upon you. उसका टच आपके ऊपर आने वाला है. His touch is going to come upon और you. जैसे पवित्र आत्मा का स्पर्श आपको मिलेगा, आपका शरीर सर से लेकर पांव तक चंगा हो जाएगा. And when the Holy Spirit will touch you today, your body will be healed from head to toe. Amen. हर एक व्यक्ति आज अपनी चंगाई लेके जा रहा है. Everyone is getting their healing with हो them सकता today. है कुछ लोगों के शरीर में 100% उसी समय मैनिफेस्ट हो जाए. Maybe for some 100% healing will manifest. कुछ Right लोगों now. के शरीर में 30% हो, मगर चंगाई हर कोई लेकर जा रहा है यीशु के नाम. For some it could be 30%, but everyone is taking healing today in Jesus' name. आपको आज इस बात को ध्यान से सुनो. Today, hear this carefully. आज जब जाओगे यहां से, Today, when you go from here, इस बात को थाम लेना है hold on to this. कि मेरी चंगाई शुरू हो चुकी है. That my healing has started. My मेरी healing has चंगाई शुरू begun. हो चुकी है. My healing has started. जॉन जी लेक कहते थे John G. Lake used to say, कि सबसे ब्लेस्ड, सबसे धन्य चंगाई वो है जो हल्के हल्के करके मैनिफेस्ट होती है. the most blessed healing is the one that manifests gradually and slowly. क्योंकि जो लोग आते हैं पहले दिन और चमत्कार लेकर चले जाते हैं, कई लोग तो यहाँ पे ये सोच के आते हैं ये बाबा, ये टोटका होता है यहाँ पे, यीशु बाबा के यहाँ. ये बाबा नहीं है यहाँ पे. Because many people come expecting a quick fix. They think there's a Baba here who will pray in Jesus' name and we'll be healed. टोटके के लिए मत आओ यहाँ पे. Don't come here for a quick fix. उद्धार के लिए आओ. अपना जीवन उस परमेश्वर को दो. Come for your salvation. Give your life to that God. Amen. So आज अगर आप पहली बार यहाँ पे आए हो, If you have come here for the first time, केवल चंगाई लेकर मत जाओ, चंगा करने वाले को लेकर जाओ अपने साथ. don't just take healing with you, but take the one who heals you. Amen. एक परमेश्वर के दास हैं, अभी उनका अमेरिका में एक सबसे one of the biggest church है. A man of God who has the biggest church in America right now. और उनकी माँ को कैंसर हो गया. His mom was diagnosed with cancer. मैं आज आपको जो बात बता रहा हूँ, अगर कितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं आज, How many of you can hear me today? मैं आपसे चाहता हूँ केवल 10 मिनट अब आप ध्यान से मेरी बात को I want you to give me 10 minutes intently, डिस्ट्रैक्ट ना हो. without distraction. कई लोग क्या करते हैं, वो केवल उनका फेथ किस पे, ले हैंड पे. Many people's faith is only on the lay hand prayer. ठीक है, मैंने आपको क्या बोला? It's okay. जिस तरीके से आपको चंगा कर सकता है प्रभु, हम वो सब करेंगे. We told you whatever तेल way लगाना God, है तेल लगाएंगे, पानी लगाना है पानी लगाएंगे, रुमाल लगाना है रुमाल लगाएंगे, वचन बोलना है वचन बोलेंगे, जो करना है वो करेंगे, पर बस चंगे हो जाओ.
Whatever method will work for you to be healed, we'll do it. We'll put oil on you, water, handkerchief, whatever you can receive healing with, we'll do it. मगर आपको ये भी सिखाएंगे कि स्वयं आप अपनी चंगाई कैसे ले सकते हो. But we will also teach you how you can take your healing for yourself. कि आप ये ना हो कि आप 30 साल से चर्च में आ रहे हो मगर आज भी आपने डायपर पहना है. So that the story is not that you are in the church since 30 years but wearing diapers still. मम्मी दुद्धू. अरे अब तो आप इतने बड़े हो जाने चाहिए कि आप खुद खाना खाओ, अपनी भूख मिटाओ और वो खाना किसी और को भी दो. By now you should be grown up so you can feed yourself and also feed others. Amen. मैंने आपको क्या बताया? रात को 3 बजे दर्द होगा, क्या करोगे? What will you do in the middle of the night if you have pain? उस दिन मेरा सबसे मैं खुश होऊंगा, मेरा बेस्ट डे होगा जिस दिन इस कलीसिया में किसी को भी ले हैंड की जरूरत नहीं पड़ेगी. That will be my best day. I'll be the happiest when no one in this church will need a lay hand prayer. और आप स्वयं वचन से अपनी चंगाई, अपना छुटकारा, अपना प्रमोशन, अपना डिलीवरेंस, अपनी बढ़ोतरी लेना सीख जाओगे. And you yourself will learn how to take your healing, your deliverance, your promotion from the word for yourself. मगर करते रहेंगे क्योंकि नए लोग आते रहते हैं और उनको जरूरत है. But we'll keep doing it because new people keep coming and they need it. आप जानते हैं एक पास्टर का काम कितना कठिन है? Do you know मैं आपको बताता हूं क्यों. how difficult a pastor's job is? I'll tell you why. पास्टर एक वो टीचर है चर्च में जिसको सिखाना है एक क्लास में जहां नर्सरी का बच्चा भी बैठा है, 12th का भी बैठा है, MBBS वाला भी बैठा है, 4th का भी बैठा है, 3rd का बैठा है. क्या प्रचार करे कि सबको सबके लिए हो. Pastor is the teacher who's teaching a class which has all the kids from nursery to MBBS. What will he teach them? टीचर 12th को सिखाता है, उसे पता है 12th के बच्चों के लिए क्या है. मगर यहाँ पे लोग आते हैं, सबका आत्मिक लेवल अलग अलग है. आपको ऐसा वचन देना है जो सबको ब्लेस करे. When a teacher teaches a class, he knows what to teach them. But as a pastor, you have to teach the people that everybody will be blessed. Amen. इसीलिए प्रार्थना करा करो पास्टर से. So pray for pastors. So उनकी माँ को कैंसर हो गया. His mother was diagnosed with cancer. कई बारी क्या होता है, लोग जब इस मीटिंग में आते हैं उनके लिए प्रार्थना हुई और एकदम चंगाई प्रकट नहीं हुई तो वो गिव अप कर देते हैं. बोलते हैं क्या हुआ? Many a times when people come to the meetings and they don't see the healing क्या हुआ? immediately, they say, "What happened?" कुछ भी नहीं हुआ. Nothing happened. अरे बहुत कुछ हुआ जो तुम्हारी आंखों ने नहीं देखा अभी. A lot happened that your eyes did not see. यीशु ने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया. Jesus cursed the fig tree. पतरस कहता यीशु क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ. Peter said, "What happened, Jesus?" Nothing happened. यीशु कहता रुक जा जरा. Jesus said, "Wait." अगले दिन जब वापस आ रहे हैं Next day when they were coming back, देखा पेड़ सूख गया. they saw the fig tree. बोला had अरे dried up. रब्बी ये तो वही पेड़ है जिसको तूने कल श्राप दिया था. He said, "Rabbi, look, the same tree you cursed yesterday." जिस दिन कमांड किया, श्राप दिया, जड़ से वो चीज सूखनी शुरू हो चुकी है. The day he commanded it, cursed it, it started to dry up from the roots. अपना विश्वास खो मत क्योंकि आंखों से नहीं दिख रहा अभी. Don't lose faith because you cannot see with these eyes. जब प्रार्थना होती है, आपने ग्रहण किया, चंगाई शुरू हो चुकी है. When prayer is done, you have received, the healing has started. सो वो समय बहुत छोटे थे That time he was very young. और उनकी मम्मी ये उस समय 2-3 साल के थे. He was 2-3 years old. और मैं उनकी मम्मी की ये गवाही दे रही थी, मैं वो सुन रहा था. His mother was telling her story and I was hearing it. और उन्होंने प्रार्थना करी, डॉक्टर के पास गए, मगर prayed. डॉक्टर ने कहा आपको जो करना है वो करो, खाओ पियो, आपके पास बहुत कम समय. They prayed, went to the doctors. The doctor said, "You have very little time. Do whatever you want to do, whatever you like." क्या होगा अगर किसी को ऐसी न्यूज मिली? वो आप सारी आशा छोड़ देते हैं. What happens when someone hears a news like that? They lose all hope. वो सारे हथियार छोड़ देते हैं. They leave all the weapons. आपने देखा है क्रिकेट मैच में क्या होता है? Have you seen in a cricket आखिरी match? बॉल तक लड़ते हैं. They fight till the last आर्मी ball. वाले क्या करते हैं? What does the army आखिरी do? सांस तक लड़ते हैं. They'll fight till the last कलीसिया breath. के अंदर ये जज्बा आना है. The church has to get this motive. आमीन. जब तक मेरे शरीर में आखिरी सांस भी होगी उसकी महिमा करूंगा और उसका वचन बोलूंगा. Till I have my last breath in my body, I will speak His word. I will fight a good fight. So डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं हो सकता. The doctor said nothing can happen. और नीति वचन 4:22 में लिखा है कि उसका जो वचन है वो दवाई है हमारे पूरे शरीर के लिए. Proverbs 4:22 it says His word is medicine for our entire body. उसका वचन क्या है? What is His word for us? दवाई है हमारे पूरे शरीर It's के लिए. medicine for our तो entire उन्होंने body. डिसाइड किया So she मैं decided. अब दिन में 3 बार वचन की खुराक लूंगी. She decided I will take the dosage of the word 3 times a day. बिना मिस करे.
without missing. हर रोज सुबह वो उठती, Every morning when उन्होंने she woke बाइबल up, से सारी चंगाई की आयतें निकाली, she took out all the verses on healing from the Bible, एक डायरी बनाई made a diary. और हर रोज सुबह उठती Every morning when she और woke उस up, वचन की घोषणा करती। she started to speak those verses एक बारी once दिन में, in the रात day, को, in the बिना night. फेल 3 बारी। Without failing, she would do it 3 times every day. 3-4 महीने बाद After 3-4 वो months, डॉक्टर के पास गई, they went to the doctor, ब्लड रिपोर्ट हुई, got the blood report. उसमें आया कैंसर और फैल गया है। It said the cancer has spread all the more. क्या करोगे आप? What would you do? 3 महीने से वचन बोल रहे हो, 3 months she's been declaring the word. गिव अप कर दोगे? Given up. उन्होंने कहा नहीं, मैं गिव अप नहीं करूंगी, मेरे बच्चे इतने छोटे हैं, She said, I won't give up. मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगी, I will fight till my last breath. मैं आखिरी सांस तक I लड़ूंगी। will fight till my वो last फिर breath. से वचन को बोलती She रही, started speaking the word again. 1 बारी, 2 बारी, Once, 3 twice, बारी, thrice, 4 बारी, वो 4 बढ़ाती गई, बोलती She गई, जब kept समय increasing, मिले kept saying. वो परमेश्वर का वचन खोलती, Whenever she परमेश्वर के had- वचन की घोषणा करती, परमेश्वर का वचन कहती, उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। Whenever she had time, she would declare the word, I am healed by the stripes of Lord Jesus. और जो डॉक्टर ने कहा था 2-3 महीने में उनकी डेथ हो जाएगी, 3 महीने हो गए, What the doctors had 6 said, महीने हो गए, she would die 9 in महीने 2 हो गए, months. 1 साल हो गया। उसके बाद वो डॉक्टर के पास गई Yeah. What the doctors had said, she would die और in वो 2-3 बताती months. हैं, डॉक्टर ने कहा इतना हेल्दी खून हमने अपनी लाइफ में किसी का नहीं देखा। After a year, she went for the test, and the doctor said, we have never seen such healthy blood in anyone's life, in anyone's body. और वो लेडी इस बात को अब 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं, उनके हस्बैंड प्रभु के पास चले गए, वो आज भी हेल्दी और जीवित है। Now it's been more than 50 years. This woman is still healthy and alive. Her husband passed away, but she's still healthy and आई alive. थिंक वो अभी 85-86 साल की है। She must be 85-86 years old. और अगर आप उनको देखेंगे एकदम फिट हैं, फिट। And if you will see her, she's जब वचन आपको स्वास्थ्य देगा तो आप फिट रहोगे, फिट। when the word will give you health, you will be fit. आमेन। मगर आपका एक दायित्व है, बोलो मेरा एक हिस्सा है। आपका क्या हिस्सा है? अगर आप बेचारे तो आप क्या बोलोगे? हाय मैं तो गई थी चर्च में, कुछ भी तो नहीं हुआ। If you act like a victim, you'll say, I went to the church, nothing happened. हुआ, बहुत कुछ हुआ A lot और has हो happened. रहा है अभी आपके शरीर में, आपको पता भी नहीं है। And a lot is happening in your bodies right now. You don't even know. मैं आज अपनी टीम को बोलूंगा, ध्यान से सुनिए, हम लोग चंगाई की घोषणा आप सबको भेजेंगे। We will send healing declarations to all of you. हम लोग बनाएंगे We will make them वचन से चंगाई की घोषणा। from the word. We'll और make healing. जितने मसीह में जो FOLJ में हमारा परिवार है, हर किसी को हम आपको पर्सनली भेजेंगे। And to all those who are और our family, we'll आप send it to you. हमसे कमिटमेंट करो, रोज 3 बारी दवाई की तरह परमेश्वर का वचन बोलोगे। And you commit to us that you will make those declarations 3 times every day. आमेन। Amen. कोई शैतान आपको समय से पहले नहीं ले जा सकता। No devil can take you before your time. करोगे आप? दवाई की तरह लोगे। जब अब आज अभी जो होगा, What's जब gonna- मैं कल प्रार्थना कर रहा था आज की सभा के लिए, प्रभु ने मुझे बताया आज एक अद्भुत सामर्थ आपके ऊपर उतरेगी जब प्रार्थना होगी। When I was praying for today's service, the Lord told me yesterday, a mighty presence will come upon you as I pray. एक टेंजिबल अनॉइंटिंग आप महसूस करोगे आपके शरीर को छूते हुए, You will experience a और tangible हम महान anointing. चंगाइयों को आज देखेंगे अपने And सामने। we will see mighty healings take place today. मगर आपको क्या करना है? What do you have आपको to do? कब्जा करने वाला बनना है। You have to be the one who captures it, sees it. 2 लोग हैं, आप लगाइए, एक होटल में गए, 2 लोग गए एक रेस्टोरेंट में। So 2 people went to a restaurant. एक को जबरदस्त भूख लगी है One was very hungry और एक को भूख नहीं लगी। and the other was not hungry at all. क्या आप बाहर से देख के पहचान सकते हो? Can you identify them from outside? कई लोग कह रहे हैं नहीं। हाँ भाई हाँ, Yes, you can identify वेटर के them. पीछे पड़ जाएगा, अबे ला भाई कब आएगा? He will get behind the waiter. जल्दी When is ला, my food जल्दी coming? ला। जिसका पेट भरा है वो बैठा है। The one who is already full is कई sitting. बार जब प्रार्थना होती है ना, कई लोग ऐसे बैठे होते हैं। Many times when we are praying, people are sitting like this. अरे भूखे हो तो कब्जा कर लोगे। If you are hungry, जब परमेश्वर take का hold. सामर्थ बहेगा When the तो power of कब्जा God कर लोगे। comes, take hold. वो समय नहीं है कि उसने कौन से कलर की शर्ट पहनी है और वो उसके बाल किस कलर के हैं। That time is not to see who's wearing what color shirt and what color hair they वो carry. समय है आपको अपना चंगाई, वो परमेश्वर का अभिषेक ग्रहण करने का। That time is for you to receive your healing, receive the anointing of God. तैयार हैं आप लोग? Are you ready? वॉरियर मेंटालिटी, उस स्त्री की तरह, आज जब उसके वस्त्र के छोर को छूऊं, To have that warrior mentality today, when I will touch the hem of his garment. आज मगर कुछ और होगा। But something else will happen today. आज
आप अपना हाथ बढ़ाओगे, You will stretch your hand. आप उसको स्पर्श करोगे और वो आपको स्पर्श करेगा। You will touch him and he will touch you. आपने उस सिस्टर की आज गवाही सुनी You heard जो- that sister's जो testimony. सुप्रीम कोर्ट में, जो बाहर, वो कह रही मैं बाहर बैठी थी She was sitting outside, she said. और उनके ऊपर सामर्थ उतरा और एकदम हील हो गई। And the power of God came down upon her. And she got healed. एग्जैक्टली ऐसे ही बहुत सारी गवाहियां आ जाने वाली है। Exactly that's what's going to happen today. पवित्र आत्मा का सामर्थ, उसकी अनॉइंटिंग आज इलेक्ट्रिक करंट की तरह, एक बिजली की सामर्थ की तरह यहाँ पे बहेगा और हम लोग महान चंगाइयों को देखेंगे। His power, His anointing will flow in this place like electricity, and we will see mighty तैयार है आप लोग? works. खड़े हो जाइए। Are you ready? अपने अपने दिलों को तैयार करो इस समय, Prepare your hearts in this moment. अपने दिलों को तैयार करो इस समय। ये आपका समय है, ये आपका This is your समय है time. आज, This is your time. ये आपका समय है आज This is your time अपनी चंगाई ग्रहण करने के लिए, to receive your healing. अपनी चंगाई ग्रहण करने के लिए। Receive your healing. अपने हाथों को उठाओ। Lift up your hands. मैं जैसे ही अब प्राप्त करने जा रहा हूं, एक महान सामर्थ आपके ऊपर उतरने वाला है। As I pray, a mighty presence will come upon you. पवित्र आत्मा का एक महान अभिषेक आपके ऊपर उतर रहा है। A mighty anointing of Holy Spirit will come upon you. आपको पूरी रीति से सर से लेकर पांव तक परमेश्वर आज आजाद कर रहा है। Today, God is healing you from head to toe, from everything. तैयार हो आप लोग? Are you ready? ले लो इस अभिषेक को। Take this anointing. 1 2 3 फायर Agni, फायर Agni. टेक इट ले लो, Take it. ले लो, टेक इट ले लो. बी हील्ड इन जीसस नेम। चंगे हो जाओ वो यीशु के नाम सामर्थ में. आ रहा है आपके ऊपर इस समय। That power is coming upon you. परमेश्वर का सामर्थ आ रहा है इस समय The आपके ऊपर। power of God is coming upon you. यीशु मसीह के नाम में, In Jesus' name. यीशु के नाम में In Jesus' name. चंगे हो जाओ। Be healed सर से लेकर पांव तक, from head to toe. सर से लेकर पांव तक, From head to toe. यीशु मसीह के नाम में। In Jesus' name. परमेश्वर का वो सामर्थ, The power of वो God. बिजली की सामर्थ आपके सर से लेकर पांव तक जा रहा है Power like electricity is going from your head to your toe. इस समय। In this moment, खून की सारी बीमारियां चंगी हो रही हैं। every blood disorder is being healed in Jesus' name. खून की सारी बीमारियां चंगी हो रही हैं। Every blood disorder is being healed. सारा कैंसर नाश हो रहा है सर से लेकर All पांव the तक। cancer is being healed in Jesus' name. सारा ट्यूमर नाश हो रहा है इस समय। All the tumor is being healed in Jesus' name. सारे मानसिक रोग नाश हो रहे हैं यीशु के नाम All में। the mental disorders are being healed in Jesus' name. ग्रहण करो अपनी चंगाई को, Take your healing. रिसीव करो अपनी चंगाई को। Receive your healing. राब्रागा साठाना ब्रागादा राब्रागादा, ओ साला ब्रागादा राब्रागादा। Be healed now। सारा दर्द जा रहा है आपके शरीर से। All the pain is leaving you. सारी बीमारी की दुष्ट आत्मा में तुझे आदेश देता हूँ, छोड़कर चली जा। Every spirit of infirmity, I command you, leave now in Jesus' name. ए राजा बादा बारा लगा द्रेगे देने में लेके जाना। परमेश्वर एल्जाइमर्स, किसी का एल्जाइमर्स डिजीज चंगा हो रहा है इस समय। God is healing someone's Alzheimer's disease. किसी को एल्जाइमर्स की बीमारी है इस जगह में, Someone has Alzheimer's disorder आप disease. चंगे हो रहे हैं एल्जाइमर्स से। You are being healed of Alzheimer's. यीशु मसीह के नाम में In Jesus' name. सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाओ। From head to toe, be healed. मैं कमांड करता हूँ आपके शरीर का हर एक ऑर्गन I command every organ of your body परफेक्ट काम कर रहा है इस समय यीशु के नाम में। be made perfect, is working perfectly now in Jesus' name. यीशु के नाम में। In Jesus' name. थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद प्रभु यीशु. थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु. अजय, अजय अपनी चंगाई ग्रहण करो इस समय। अजय, अजय अपनी चंगाई को लो. देखो, अजय, परमेश्वर तुम्हें चंगा कर रहा है सर से लेकर पांव तक। अजय, God is healing you from head to toe. हालेलुया। ज़ाब्रागा डाना मसे कोठोरो, आपके पास अधिकार है You अब। have अपने authority. मुंह को खोलो Open your mouth और अपने बीमारी को कमांड करो कि मेरे शरीर से निकल के बाहर जा। and command your sickness to get out of your body. हर कोई यहाँ पे, कोई चुप ना रहे। Let no one be silent here. कमांड करो यीशु के नाम में। Command in Jesus' name.